Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, Ajaz Jahangir Rath, resource person, Zone Narwal Badgam. My dear students, before I start, let me convey you an important message, and that is, of course, regarding the COVID-19 outbreak. So, what we are supposed to do? Yes, if we go out, we have to wear a mask. And we have to sanitize our hands, we have to keep our hands clean, and we need to maintain a distance of at least 6 feet from others. And the better is if we stay at home. If emergency arises or if need arises, then only we will go out. But if we go out, we will keep these things in mind, that we will sanitize our hands, we maintain the distance of at least 6 feet, and we will wear a mask. Okay, nice, my dear students. Okay, now coming to our own business, that is, we are dealing with this environmental science, and in these we have till now talked about in our previous lectures, like we talked about ecology, definition and types. We talked about ecology, its definition and types. Then we talked about the concept and structure of ecosystem. We talked about concept and structure of ecosystem. Then we talked a little about the trophic organization. I mean the levels of these different levels of these organization that we call as trophic levels. So my dear students, आज हम इसी टॉपिक यानी जो एक कहेंगे कि functions of the ecosystems में आएगा, that is we have to deal with the trophic levels in today's teleclass. So be with me, and here we go. What are the trophic levels? Now this is the position of an organism. The position of an organism in a food chain. In a food chain, right? So we can say the trophic level is nothing but it is the position of an organism in a food chain. And in this trophic level, it depends upon it's based upon the function of the species and not on the species. So I will write it depends upon it's based upon the function of the species. Function of the species and not on the species. Let me clear this concept by drawing a diagram, I should say. So here I will write as producers. Then the next one, the next level is our herbivores. Then there are carnivores. Then there are
top carnivores. You got it, my dear students? Yes. Now, in this producers, I will keep green plants, or I can keep in these phytoplanktons. Right? Now, in second category of these this level, that is the herbivores, I will keep the zooplanktons. I call this as the primary consumers as well. Primary consumers. Now, in this category, I will keep the like small fish, and this is our secondary consumers. Then is this top carnivores, and I will keep as an example man, isn't it? Okay, and this is our top carnivore. Man is actually an omnivore, but to understand the concept, I will keep it as top carnivore here, right? Okay, now my dear students, this is my T1, this is trophic level 1. This is the T2, this is trophic level 2. This is T3, this is trophic level 3. And this is, yes my dear student, this is trophic level 4. You got my point? Okay. Now one more thing you need to understand and you need to keep in your mind, जिसे आपको याद रखना है, that at each level there is some energy loss in the form of what? In the form of respiration, in the form of heat. I will write respiration, heat. इन दो सूरतों में या कोई और भी हो सकता है, क्या होता है कि एट ईच ट्रैफिक लेवल जब हम ऊपर जाते हैं, देयर ऑकर्स द एनर्जी लॉस. हमारी जो एनर्जी है, ताकत जो है वो जाया हो जाता है. ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें या यूटिलाइज होता है. और इनफैक्ट ऐसा भी कुछ है कि जो जिसको हम बोलते हैं NU नॉट यूटिलाइज्ड, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम फिलहाल यहाँ पे ये याद रखेंगे कि हमारी जो ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, दैट इज प्रोड्यूसर्स. नाउ दीज आर आवर ग्रीन प्लांट्स. देन देयर इज दिस ट्रॉफिक लेवल 2, these are our herbivores, जो इन प्लांट्स को खाते हैं, इन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं या ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स को खाते हैं. Then there are these carnivores. In this we include small fish. We call them also the secondary consumers. And then there is this top carnivore. इसमें हमारा kingfisher भी आता है, इसमें हमारा owl भी आता है, तो इसमें हमारा hawk भी आता है. चलो मैंने man को रखा है. This is our top कार्निवोर. नाउ मैंने आपको बोला कि ये हमारी ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये हमारी ट्रॉफिक लेवल 2 है, ये हमारी ट्रॉफिक लेवल 3 है, एंड दिस इज आवर ट्रॉफिक लेवल 4. राइट माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, देन हियर अगेन एनर्जी लॉस, हियर अगेन एनर्जी लॉस. ठीक है, डिफरेंट दीज ट्रॉफिक लेवल्स हमारी जो एनर्जी है वो लॉस होती है. ये कैसे होती है तो ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम फिलहाल ये याद यहां पे रखेंगे कि इसमें हमारी जो एनर्जी है ये लॉस हो रही है. ठीक है, ये लॉस हो रही है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपेंस हियर? यहां से मैंने आपको ट्रॉफिक लेवल्स बता दी, शाबाश. यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे इसकी भी डेथ हो सकती है,
मैं यहाँ पे पहले ये रब करूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, इसकी डेथ हो सकती है, इसकी भी डेथ हो सकती है, इसकी भी डेथ हो सकती है, और इसकी भी डेथ होती है। एक तो ये है कि ये डिफरेंट जो लेवल्स हैं उन पे एग्जिस्ट करते हैं। हर्बीवोर्स इनको खाते हैं, ये इनको खाते हैं, ये इनको खाते हैं, फिर इनको क्या हो जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एट ईच लेवल तो डेथ तो हो रही है ना, तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है एंड दिस हैज टू बी देयर। डेथ हर एक चीज को इसका मजा चखना है, दैट इज डेथ हियर हियर हियर। नाउ जो उसके बाद क्या होता है, हाँ हमारे वो डेट्रीवोर्स जो है, डेट्रीवोर्स जिनको हम डेट्रीवोर्स एनिमल्स भी बोलते हैं, जिनको हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, वो उन पे अटैक करते हैं तो उनको वो फिर डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल दैट देयर एग्जिस्ट डिफरेंट trophic levels in our ecosystem. Like I told, trophic level 1 producers, trophic level 2 herbivores, trophic level 3 carnivores, and trophic level 4 that is top carnivores, or we call them also the tertiary carnivores, or tertiary consumers. These we can call this herbivores as primary consumers as well, carnivores secondary consumers as well, the top carnivores the tertiary consumers as well. And if we keep another this entity here, I can call that quaternary consumers. You got my point, my dear students? Okay, now this is about the trophic levels. Now we need to understand some of the key points before we proceed, so that जो हम आगे पढ़ेंगे, जो हम different concepts आगे पढ़ेंगे, उनको समझने में आपको कोई डिफिकल्टी या कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो हम पहले वो समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो हमारे ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, तो इनकी जो ट्रॉफिक लेवल है दैट इज T1, ठीक है। और इन जो हमारे हर्बीवोर्स हैं इनकी जो ट्रॉफिक लेवल है दैट इज T2. नाउ वी कॉल दिस एज C1 T2. What is C1? These are consumers of the first order. These are consumers of the first order, or these are also called as primary consumers. Now here you see there are these carnivores, okay. Then we can call this as C2 T3. These are consumers of the second order. Now here these are consumers of the third order, ठीक है, T4, C3 T4, C1 T2, C2 T3, C3 T4. So this is all about this. Now next is our very important concept, that is food chain. Very important concept in the ecosystem is this food chain. Food chain, my dear students. We find the scriptures of the old civilization, and we find there exists this concept of this food chain. Like in Mahabharata, there are the references about this food chain and the importance of this food chain. And in fact, the Greeks also knew about this food chain, and it was Antony Leeuwenhoek in the late 17th century who substantiated this concept and used this term, this food chain. He used this extensively, this food chain, right, my dear students. And in our
religion, that is Islam, it has also been given emphasis, like there is a hadith which reads as, if a Muslim sows a seed, or plants a tree, and then a bird, an animal, or a man eats from it, eats a fruit from it, then it is regarded as a charitable deed or charitable gift for that very person. Okay, and there is another hadith which reads, if a Muslim plants a tree and diligently looks after it until it matures and bears a fruit, it is rewarded. Okay, now, so what we are supposed to do, we should plant more and more trees and become a partner and become a contributor to the food chain. Now what is this food chain, my dear students? Food chain is nothing. It is the process of eating. It is the process of eating and being eaten. I will write. It is the process of eating and, yes, being eaten. Now होता क्या है प्यारे बच्चों? हाँ, होता ये है कि जो हमारा फीडिंग मैकेनिज्म है इस कायनात में, इस दुनिया में, जो हमने पहले भी बोला है कि देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, लाइक देयर इज इकोलॉजी, देयर इज इकोसिस्टम. अब उसमें हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी मुख्तलिफ ये जो इसमें जो एंटाइटीज हैं, चीज़ें हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनका एक इंटरेक्शन रहता है. और ये सिर्फ जो हमारे एबायोटिक जो कंडीशंस है, एबायोटिक जो थिंग्स हैं, उन्हीं के बीच में नहीं रहता है, बल्कि ये एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में ये इंटरेक्शन रहता है. हाँ, और एबायोटिक और बायोटिक में ही नहीं, बल्कि ये बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट्स में भी इनका इंटरेक्शन रहता है. और उसको हम क्या बोलते हैं? फीडिंग मैकेनिज्म. फीडिंग मैकेनिज्म क्यों होता है? फीडिंग मैकेनिज्म ये इसलिए है ताकि एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे. वो जिंदा तभी रह सकता है जब वो कुछ खाएगा, और जब वो खाता है और उसको खाने वाला फिर दूसरा होता है, तो इस तरह से ये एक चेन बनती है. सो आई विल again say this food chain is nothing but it is the process of eating and being eaten. It is the process of eating and being eaten. Now in this there is transfer of food energy. There is transfer of food energy. I will write, in food chain there is transfer of food energy, and it exists through a series of organisms. It exists through a series of organisms with repeated eating. It exists in a series of organisms, with eating and being eaten. With eating and being eaten. ठीक है? और we can say it is the transfer of energy from one trophic level to another trophic level. हाँ, हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि food chain is transfer of energy. सिंपली हम कह सकते हैं it is transfer of energy
from one trophic level to another। ठीक है, तो चलिए मैं इसकी एक एग्जांपल लिख देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे ग्रास। ठीक है, अब इस ग्रास को कौन खाता है? इसको खाता है रैबिट, और इस रैबिट को कौन खाता है? इसको खाता है फॉर एग्जांपल वुल्फ, और इस वुल्फ को कौन खाता है? इसको खाता है टाइगर। ठीक है, एक और एग्जांपल ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल हम ले लेंगे। जैसे हम लिखेंगे ग्रास, ठीक है, इसको खाता है डियर, और डियर को खाता है टाइगर। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल्स आपको बताई, एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन। अब यहां पे आप गौर कीजिए, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 1, दिस exists at level 2, this exists at level 3, and this exists at level 4. Okay, now here this exists at level 1, this exists at level 2, and this exists at level 3. Now you compare my dear students, आप दोनों का मवाजना कीजिए। ठीक है, यहां पे ये लेवल 4 पे है, यहां पे ये लेवल 3 पे है। तो हम फिर से ट्रॉफिक लेवल्स पे आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है इट कैन एग्जिस्ट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। निकल आया ना हमारा एक पॉइंट कि एक ऑर्गेनिज्म जो है इट कैन एग्जिस्ट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। लाइक मैंने वहां पे आपको एक एग्जांपल बताई थी मैन के, जो मैन है, जो हम है, आदमी जो है, तो हमारी जो ट्रैफिक लेवल है वो एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम हर्बीवोरस भी हैं, हर्बीवोरस भी हैं, हम पेड़ पौधों को भी खाते हैं, एंड वी आर कार्निवोरस एज वेल, हम उनको भी खाते हैं। तो सो वी कैन एग्जिस्ट एट डिफरेंट लेवल्स। तो हमारी जो एग्जैक्ट पोजीशन है दैट्स नॉट नोन। लाइक इसी तरह मैंने आपको बोला था ट्रॉफिक लेवल्स में ये कि जो एक ऑर्गेनिज्म है ट्रॉफिक लेवल है ही यही कि हम बोल सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ द स्पीसीज एंड नॉट ऑन द स्पीसीज। यानी ट्रॉफिक लेवल जो है वो दैट्स बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द स्पीसीज एंड नॉट ऑन द स्पीसीज। और एक स्पीसीज जो होता है इट कैन एग्जिस्ट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, जैसे मैंने आपको यहां पे बता दिया। ठीक है, जो टाइगर है ये लेवल 4 पे भी है और ये लेवल 3 पे भी है। ठीक है, ओके, देन some more characteristics about this food chain. In fact, very much important points. My dear students, ये बात आपको याद रखनी है कि जो food chain है it is it's linear. It is linear. My dear students, it is linear. It is unidirectional. Unidirectional. It is linear, it is unidirectional. Okay, then it is always straight. It is always straight. Like मैं आपको बताता हूं कि एक हम एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे हमारा ग्रास है। ठीक है, इसको कौन खाता है? इसको मानिए डियर खा रहा है, और इसको कौन खाता है? डियर को इसको टाइगर खा रहा है। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल है फूड चेन की। तो मैं ये टाइगर इसको ओमिट में नहीं कर सकता हूं, मैं इसको ओमिट नहीं कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि चलिए जी टाइगर को ही बोलेंगे कि आप ग्रास खाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये एक
यूनिडायरेक्शनल है, यानी ग्रास को डियर खाएगा, डियर को टाइगर खाएगा, ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल है। यानी इसमें जो लीनियर है, स्ट्रेट है, हाँ, ये इधर उधर से नहीं चलती है, ठीक है, तो ये है। और इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारे ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं वो जो जब हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं फूड चेन की, सो ओमनिवोरस एनिमल्स कैन एग्जिस्ट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, वो भी आपको याद रखना है। और इसमें यह है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, जैसे यहां पे मैंने लिखा यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी फ्लो है वो यहां से होगा, ग्रास से डियर को, डियर से टाइगर को, तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड एनर्जी जिसको हम बोलते हैं वो यहां से यहां हो जाएगा। तो एक तो ये बात है। और माय डियर स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ग्रास में एनर्जी कहां से आती है? ये आती है सन से। सन, इस पे थोड़ा सा ये करेंगे, थोड़ी सी इस पे बात करेंगे, ठीक है। फूड चेन आपको समझ में आ गया? शाबाश, वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट्स। सन, हम कहते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप बोलेंगे कि चलिए हम ले लेंगे एक एग्जाम्पल, ठीक है। मैं बोलूंगा कि मैं ये कहता हूं कि अगर सन नहीं होगा सो देयर इज दिस इम्पॉसिबिलिटी कि लाइफ एग्जिस्ट हो। लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं होगी अगर सन नहीं होगा, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस इज द गोल्डन रूल एंड ये आपको याद रखना है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बोलेंगे कैसे? जब प्लांट्स जो है इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, तो ये सन से एनर्जी लेके इन द फॉर्म ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आती हैं सन से, सनलाइट, तो ये उसको एब्जॉर्ब करके फिर उसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। प्लांट्स जो है उनको फिर हमारे एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स का फिर क्या होता है? एनिमल्स को फिर और एनिमल्स खाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो यहां पे एनिमल्स हो सकते हैं, यहां पे और एनिमल्स हो सकते हैं, और एनिमल्स हो सकते हैं। देन देयर आर डिकम्पोजर्स, है ना प्यारे बच्चों? हाँ, मैंने क्या लिखा? देखिए, सन सबसे पहले आएगा, यहीं से एनर्जी आएगी, ये यहां पे जाएगी, फिर एक एनिमल में आएगी, फिर दूसरे एनिमल में, तीसरे एनिमल में। जैसे प्लांट है, ये ग्रास है, मिसाल से मैं आपको समझा सकता हूं, ये ग्रास है, तो एनिमल में हम रखेंगे इसको जैसे डियर रखेंगे, ठीक है। और एनिमल में हम फिर यहां पे वुल्फ रख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे हम रख सकते हैं टाइगर को। देन देयर आर डिकम्पोजर्स, इसमें हमारे बैक्टीरिया हैं, इसमें हमारा फंगजे है, ठीक है। तो दिस जो मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, वो यहां से जंप करके इधर नहीं आएगी, नहीं, दैट हैज टू बी लीनियर, दैट हैज टू बी स्टेप वाइज, और दैट हैज टू बी यूनिडायरेक्शनल एनर्जी, ठीक है। अब ये अलग बात है कि जो हमारी एनर्जी है वो एट ईच लेवल वो ट्रांसफर जो है वो फुली ट्रांसफर नहीं होती है, वो बिल्कुल उसका एक थोड़ा सा अमाउंट ट्रांसफर होता है। वो हम इंशाल्लाह अभी आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, तो हम इंशाल्लाह वो उस पे हम बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फूड चेन। नाउ इन दिस फूड चेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ फूड चेन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखिए कि जो हमारी फूड चेन है इट्स ऑफ टू टाइप्स। This our food chain is of two types. One is, we call it as grazing food chain. Grazing food chain. And second one is, my dear students,
This is called as detritus food chain. Number one is grazing food chain, and the number second is detritus food chain. Now, what is this grazing food chain? There is a golden rule जो आपको याद रखना है कि grazing food chain always starts with autotrophs, or we can say it starts with green plants. और जो हमारी detritus food chain है, it starts with detritus, या हम लिटर भी कह सकते हैं, ठीक है. इट स्टार्ट्स विद दिस. तो ग्रेजिंग फूड चेन में हमारी जो एग्जाम्पल हो सकती है, तो एक चीज आपको आप कंफ्यूज नहीं होना कि दिस ग्रेजिंग फूड चेन ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल ही नहीं होती है. इट इज बोथ टेरेस्ट्रियल, it is aquatic as well. जैसे मैं आपको बताऊंगा, हम यहां पे लिखेंगे फाइटोप्लैंक्टन, देन जूप्लैंक्टन. एग्जांपल में लिखूंगा एक्वेटिक दिस ग्रेजिंग फूड चेन की, वो है मैं लिखूंगा फाइटोप्लैंक्टन. अब ये क्या होते हैं? ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं दैट ड्रिफ्ट विद द करंट्स ऑफ द वाटर. दीज आर फाइटोप्लैंक्टन, जो पानी में होते हैं, समंदर में होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन. इनको कौन खाता है? जूप्लैंक्टन. और इनको कौन खाता है? फिश. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन, बट दिस इज एक्वेटिक फूड चेन. नाउ अनदर एग्जांपल वी कैन राइट एज, जैसे हमारा ग्रास है, इसको खाएगा रैबिट और इसको खाएगा फॉक्स, ठीक है. नाउ दिस इज टेरेस्ट्रियल ग्रेजिंग फूड चेन. अब आप गौर कीजिए प्यारे बच्चों, ये फाइटोप्लैंक्टन, दिस इज ऑटोट्रॉफ, this carries out the photosynthesis, then this grass, this is autotroph. So मैंने आपको बोला कि जो हमारी फूड चेन है, ये वाली ग्रेजिंग फूड चेन, it starts with the autotrophs or it starts with the green plants. Now what happens in detritus food chain? ये हमारी क्या है? शाबाश, जो हमारे डेड लीव्स होते हैं, डेड लीव्स इन वाटर, मैं लिखूंगा डेड लीव्स इन वाटर. अब इनको कौन खाता है? इनको इंसेक्ट खाते हैं, इनको स्नेल्स खाते हैं. तो मैं लिखूंगा वर्म्स और स्नेल्स, ठीक है. वर्म्स और स्नेल्स. देखिए डेट्रिटस फूड चेन में इट स्टार्ट्स विद डेड लीव्स इन वाटर. इन डेड लीव्स इन वाटर जो हैं, इन पे कौन अटैक करते हैं? इनको कौन खाता है? वर्म्स एंड स्नेल्स. देन देयर इज दिस स्मॉल फिश. वर्म्स और स्नेल्स को कौन खाता है? स्मॉल फिश. और इन स्मॉल फिश जो हैं, इनको कौन खाता है? इनको खाता है बिग फिश. वेल है, शार्क है, ठीक है. सो दिस इज दिस डेट्रिटस फूड चेन, राइट. सो हम इसमें एक और लिख सकते हैं, जैसे अगेन मैं लिखूंगा डेड लीव्स, डेड लीव्स इन वाटर. हाँ, इसको और खाते हैं हमारे इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स को और खाते हैं हमारे स्मॉल बर्ड्स, और इन स्मॉल बर्ड्स को कौन खाता है? इनको हमारा स्नेक खा सकता है. तो मैं स्नेक लिखूंगा, ठीक है. नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस डेट्रिटस फूड चेन. इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके. Now let me repeat a bit about this food chain. So what is food chain? Food chain is nothing but it is the transfer of food energy from one organism to another
organism, and it is the process of eating and being eaten, or simply we can say transfer of energy from one trophic level to another trophic level. अब मैंने इसकी आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बता दिए हैं और इसके टाइप्स भी बता दिए हैं. वन इज ग्रेजिंग फूड चेन, अनदर इज डेट्रिटस फूड चेन. ये हमारी डेट्रिटस फूड चेन जो है, ये हमारे जो मैंग्रोव्स प्लांट्स है इन मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, वहाँ पे जो डेड लीव्स है उनके मुतालिक ये बोला जाता था कि उनकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है दैट इज लेस. बट अगेन यहाँ पे आप देख लीजिए उनका जो डेड लीव्स हैं जो गिरते हैं, पानी में गिरते हैं, फिर वो किस तरह से फूड चेन में अपना रोल निभाते हैं. तो हम ये कह सकते हैं बेकार कुछ नहीं है, अल्लाह ताला ने सबकी यूटिलिटी रखी है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है, वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज फूड वेब. नाउ नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फूड वेब. Next concept is food web. Now, as the name suggests, it must be a web-like. Now, let me show it to you. This is this web. This is this food web. What is this food web? A network of food chains. Now there exist in our ecosystem different food chains, right? Now in what is food web? It's a network of food chains which are interconnected, which are interdependent at various levels, okay, so as to form a number of feeding connections amongst different organisms of a biotic community. You got my point, my dear students? जो हमारी मुख्तलिफ फूड चेन्स हैं, जो हमारे इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं, नाउ उनका एक इंटरकनेक्शन, उनकी एक इंटरडिपेंडेंस, उनका एक नेटवर्क वही बनाता है एक फूड वेब. ठीक है. जो हम इसमें आपको मैं ये बना के बता देता हूं, दिखा देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखूंगा बैक्टीरिया. दिस इज माई बैक्टीरिया. नाउ बैक्टीरिया, यहां पे मैं ट्री लिखूंगा. ठीक है. यहां पे मैं डियर लिखूंगा. यहां पे मैं इंसेक्ट ईटिंग बर्ड है मेरा. यहां पे मेरा स्नेक है. यहां पे मेरा श्रिव है. यहां पे मेरा हॉक है. यहां पे मेरी स्क्विरल है. यहां पे मेरे फंगई हैं. यहां पे मेरा ग्रास है. यहां पे मेरा श्रब है. एंड यहां पे मेरा ग्रास होपर है. और यहां पे मेरा रैबिट है. These all organisms exist in our ecosystem. ये बैक्टीरिया है, ये ट्री है, ये डियर है, ये इंसेक्ट ईटिंग बर्ड है. दिस इज रैबिट, दिस इज ग्रास होपर, दिस इज श्रब, दिस इज ग्रास, दिस इज फंगाई, दिस इज स्केरल, दिस इज श्रिव, दिस इज स्नेक एंड वन मोर माउंटेन लाइन जो है उसको भी लिख सकते हैं माउंटेन लाइन. ठीक है. तो हॉक है और माउंटेन लाइन है. ठीक है. ओके. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, जो मेरा ग्रास है इसको कौन खाएगा? ग्रास हॉपर. ठीक है. ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? इसको श्रिव खाएगा. ठीक है. और इस ग्रास को और कौन खा सकता है? हाँ, हमारा रैबिट खा सकता है इसको. और रैबिट को कौन खाता है? इसको स्नेक खाता है. ओके. और इसके बाद
हमारा माउंटेन लाइन जो है वो किसको खाता है? हाँ, वो हमारे स्नेक को खाता है। और स्क्विरल को कौन खाता है? इसको हॉक खाता है। और हॉक जो हमारा है, स्क्विरल जो है वो किसको खाता है? वो फंगई को खाता है। हाँ, इसी तरह हम एक और बता सकते हैं, हमारे श्रब को कौन खाता है? इसको रैबिट खाता है। ठीक है, हमारे ट्री को कौन खाता है? इसको डियर खाता है। हमारा जो श्रब है इसको भी डियर खाता है। ठीक है, और हमारा इंसेक्ट ईटिंग बर्ड जो है वो ग्रास होपर को खाता है। नाउ यू सी माय डियर स्टूडेंट्स, डजंट इट मेक अ वेब लाइक स्ट्रक्चर? और जो हमारी मुख्तलिफ फूड चेन्स हैं, यहां पे मैं दिखाऊंगा, एक फूड चेन है मेरी जैसे ग्रास। चलिए मैं यहां पे ये रब कर देता हूं, यहां पे आपको समझाऊंगा। ग्रास, इसको कौन खाता है? ग्रास हॉपर खाता है। ग्रास हॉपर को कौन खाता है? इसको श्रिव खाता है। श्रिव को कौन खाता है? इसको हॉक खाता है। हाँ, इसी तरह हमारा ग्रास है, इसको कौन खाता है? इसको रैबिट खा सकता है। रैबिट को कौन खाता है? इसको स्नेक खाता है। एंड स्नेक को कौन खाता है? इसको हॉक खाता है। ओके, देन अगेन ग्रास, इसको ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को इंसेक्ट ईटिंग बर्ड, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड, और इस इंसेक्ट ईटिंग बर्ड को कौन खाता है? हॉक खाता है। नाउ यू सी माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रास, ग्रास हॉपर, श्रिव, हॉक, ग्रास, रैबिट, स्नेक, हॉक, ग्रास, ग्रास हॉपर, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड, हॉक। जो हमारी फूड चेन्स है कनेक्ट हो रही है, इंटरकनेक्ट हो रही हैं, और ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। वी कॉल दिस एज food web. Now here again, what's the difference between the food chain and food web? Food chain is unidirectional. It's not unidirectional. You see, there is a web like structure. यहां से ये यहां से इसी तरह होता है इसमें। ठीक है, और वहां पे unidirectional flow of energy, here no such thing, unidirectional flow of energy is not here. So, और यहां पे एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक एनिमल को अल्टरनेटिव्स हैं। एक जो ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीसीज है, उसको डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं। वो इसको भी खा सकता है, उसको भी खा सकता है। सो द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मोर इन द फूड वेब देन इन द फूड चेन। वहां पे अगर किसी एक एलिमेंट को, किसी एक ट्रॉफिक को लेवल को ओमिट करेंगे, खत्म करेंगे, तो जो उसके बाद पलने वाली, उस पे पलने वाली ट्रॉफिक लेवल है, दैट वोंट एग्जिस्ट, वो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वहां पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम है, यहां पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं, दिस फूड वेब प्रोवाइड्स ग्रेटर स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम। हम लिखेंगे इट ग्रेटर स्टेबिलिटी to the ecosystem. ओके, और हम एक और इसमें कह सकते हैं कि अगर एक स्पीसीज इसमें एक्सटिंक्ट हो भी जाती है, तो हमारे जो उस पे पलने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ये है कि वो खत्म नहीं हो जाएंगे, बिकॉज अल्टरनेटिव्स एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इज ऑलवेज देयर. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फूड वेब. नाउ नेक्स्ट इज आवर ecological pyramids. What are ecological pyramids? Next we will be discussing about the ecological pyramids. Now my dear students, what is ecological pyramids? Let me show you. This is your ecological pyramid concept. Now you see, it is the different trophic levels in an ecosystem which we can represent diagrammatically, graphically we can say, and the graphic representation is called the ecological pyramid. Now we have different organisms at different trophic levels. जब हम उनको graphically represent करते हैं, that we call as ecological pyramid. Now who has given this ecological pyramids concept? It was Charles Elton. Charles Elton in 1927 gave this
concept of this ecological pyramid, and that is why we call these as Eltonian pyramids as well. Eltonian pyramids. Now my dear students, अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट आर दीज इकोलॉजिकल पायरामिड्स, आप उनको बोलेंगे कि जब हम जो हमारे डिफरेंट लेवल्स जो हैं, ट्रॉपिक लेवल्स हैं, उन पे जो एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो हम उनको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग दीज बार्स, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज द इकोलॉजिकल पायरामिड्स. दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन इन 1927. वी कॉल दीज एज एल्टोनियन पायरामिड्स एज वेल. ठीक है, ओके. देन इसमें हमारे जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, दैट इज pyramids of number, pyramids of biomass, and pyramids of energy. So we can say there are three types of ecological pyramids. One is pyramids of number, another one is pyramids of biomass, and the third one is pyramids of energy. Now what is in pyramids of number? Here, as the name depicts, it is the number of individuals in the different trophic levels at any given time. Now if you see here, I have kept this here as primary producers, that is our grass, and these are our producers. Then who eats them? The primary consumers, and in that we have rabbits, mice, grasshoppers. Okay. Now who eats them or who feed on these is our secondary consumers, and in that we have snake and foxes. Okay. Then who feeds on these secondary consumers? We call them as tertiary consumers, and in that we keep eagle and lion. ठीक है, तो आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, जो हमारा पायरामिड ऑफ नंबर है, ये मैंने आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम की एक एग्जांपल बताई है, जिसमें हमारा पहला है ग्रास, उसके बाद है रैबिट, उसके बाद है स्नेक, और उसके बाद है ईगल. ठीक है, ये हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है. ये इकोलॉजिकल पायरामिड है, और उसकी मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं. ग्रास पहली लेवल पे, सेकंड पे रैबिट, उसके बाद स्नेक, और उसके बाद ईगल. तो ये आप देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रास है ये सबसे ज्यादा है, और रैबिट जो इस फीड करता है वो उससे थोड़ा कम है, तो स्नेक जो है वो इससे थोड़ा कम है, और ईगल जो है वो इससे भी ज्यादा कम है. तो इट शुड बी अपराइट एंड वर्टिकल. बेस पे ये ब्रॉडर है क्योंकि ग्रास है, सबसे ज्यादा है. देन इट गोज इट डिक्रीजेस लाइक इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स वी हैव रैबिट्स. ये इससे ग्रास से थोड़े कम होते हैं. हम नंबर की बात यहां पे करेंगे. उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो वहां पे हमारे स्नेक है, फॉक्सेस है, और कम हो जाएंगे. और लास्ट लेवल पे जो हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं, वहां पे हमारा ईगल है, लाइन है. सो इट्स ऑलवेज upright pyramid. Okay, so this was our pyramid, this grassland ecosystem. Now another example हम बता सकते हैं this ecological pyramid of number में, जिसमें हमारा fresh water ecosystem है. तो पहले लेवल पे मैं रखूंगा phytoplankton. शाबाश, phytoplankton. अब उनको कौन खाते हैं? zooplankton. हाँ, और इन zooplankton को कौन खाते हैं? स्मॉल फिश. और स्मॉल फिश को कौन खाता है? शाबाश, कार्निवोरस फिश. उसके बाद है हमारा कार्निवोरस फिश, और कार्निवोरस फिश को कौन खाता है? दैट इज बिग फिश. ओके, तो ये इस तरह से चलता है. तो ये भी हमारा अपराइट पायरामिड होगा, बिकॉज जो फाइटोप्लैंक्टन है उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है. देन देयर आर जूप्लैंक्टन, उनकी जो नंबर है उनका जो कम होता है. उसके बाद स्मॉल फिश, उसके बाद कार्निवोरस फिश, उसके बाद बिग फिश. तो इस तरह से इसको अभी अपराइट पायरामिड हम कहते हैं. इसी तरह एक और है हमारा, दैट इज अपराइट पायरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए क्रॉपलैंड इकोसिस्टम. उसमें हमारा पहला आएगा क्रॉप प्लांट्स. हम क्रॉपलैंड की बात कर रहे हैं. देन देयर आर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रास होपर्स. देन देयर आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस. देन देयर आर टर्शियरी कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ snakes and lizards, and we have these quaternary consumers, and in that we have our hawk and eagle. It's again upright pyramid. Then एक और जो हमारा inverted है, यहां पे आप देख लीजिए, ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ये एक ट्री है, बिकॉज ट्री इज सिंगल. हम इसकी बात करेंगे. दिस आवर प्रोड्यूसर,
यहां पे हम सिंगल ट्री को ले लेते हैं, उस पे कौन फीड करता है? प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें हमारे हर्बिवोर्स बर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स में पैरासिटिक लाइस एंड बग्स हैं, जो हमारे पैरासाइट्स ऑन हर्बिवोर्स होते हैं। देन देयर इज दिस टर्शियरी कंज्यूमर्स, हाइपर पैरासाइट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी मच लार्ज। दैट इज व्हाई सिंगल ट्री हमने बेस पे रखा है, उसके बाद ये ब्रॉडर होता जाएगा, दैट्स व्हाई इट्स इन्वर्टेड। नाउ दिस इज अबाउट दिस इकोलॉजिकल pyramid of number. Now another we have pyramid of biomass. Now you know biomass is the relationship between the different trophic levels of an ecosystem on the basis of living weight. Now this weight can be the fresh weight or dry weight. Now in this you see this is upright, we have producers. Here you see there are 1000 kilograms in the form of grass. Then here it is 10% इसका 100 किलोग्राम्स रैबिट और माइस, इसका 10% वो है 10 किलोग्राम फॉक्सेस, लिजर्ड, स्नेक, लाइन्स जो लास्ट पे हैं दैट्स 1 kg. इट्स अगेन अपराइट pyramid and it is inverted. Okay, it's not inverted. Now here this is upright pyramid of biomass of a forest, trees, deer or elephants, wolves, tigers, lizard and snake, and there are these lines. Now here you see, my dear students, this is inverted inverted pyramid of biomass in a pond. We are talking about the pond. This is the pyramid of biomass of pond. Phytoplanktons, small fish, and this is this large fish. And lastly we have this pyramid of energy. This is the total energy content at the different trophic levels in an ecosystem. Now here you see this is the graphical representation of energy trapped per unit time, my dear students, per unit time and area in different trophic levels of food chain. Producers, herbivores, carnivores, and at the last we have tertiary consumers, hawk and eagle. Upright pyramid of energy. This represents the true picture of the ecosystem. Here we have 1000 kilocalorie, 100 kilocalorie, 10 kilocalorie, and this is 1 kilocalorie. 10% loss at each level, and this we call as the Lindemann in 1942, the Lindemann loss of energy. Only 10% energy passes from one level to another level. So my dear students, today we discussed some of the key points. That was this food chain, that was this food web, and we talked about ecological pyramids. I hope you enjoyed my class. Inshallah, we'll be meeting soon in our next lecture. Till then, stay safe, stay blessed, take a good care of yourself. Now I will give you my phone number, that is this 8493086017. You can call me anytime if you have any query or if you have any doubt to clear. I will give you my mail ID, that is ejazjahangir123@gmail.com. Ejaz Jahangir. One more email ID is sajuessaiju@readymail.com. You can contact me. Thank you. Stay blessed. Stay safe.